few days ago I was exploring Hebrew, so I explore different languages a lot, because of which इसने ऐसा बोला है कि exploring different cultures. However, I am just not interested in cultures at all. I am not interested in my own culture. I am not interested in anybody's culture. I am only interested in learning different languages to excite my brain. Otherwise, I'm more towards nature than culture. If people start living more naturally than culturally, the world will be a better place to live, a happier place. That's what I believe. And then financial investment strategies. That's least one, because in my life I'm least interested in money, but I'm interested in money. But I'm least interested. Among my interests, it's on the lowest priority. Then today I wrote this note. जिंदगी में मैंने एक भी पल फिजूल नहीं किया, हर पल जो किया वो फिजूल नहीं गया. मैंने जिंदगी में एक भी पल फिजूल नहीं किया, हर पल जो किया वो फिजूल नहीं गया. जो 2009 की जॉब में सीखा वो 2025 में बाबागिरी की दुकान चलाने में काम आया. जो पुणे में बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, बच्चों के संग एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पर आपको दिखाऊं, वो तो यूट्यूब में देख लो. यू डोंट कैरी स्मार्टफोन, डोंट यू? डू यू स्मार्टफोन? डू यू कैरी स्मार्टफोन? राइट, नॉट राइट नाउ एटलीस्ट. ओके, सो जो पुणे में बच्चों के संग एक्सपेरिमेंट्स किए वो अजमेर में काम आए. अजमेर के किड्स के संग जो वीडियो बनाए वो पुष्कर में स्पेन की आंटी को दिखाए, वो मस्त हो गई. स्पेन में न्यूरोजिम बनाने की बोलकर लौट गई. जो जर्मन भाषा पुणे के ओशो के आश्रम में और पुणे के अदरवाइज भी डुओलिंगो से हमने प्रैक्टिस की, वो पुणे के कैफे ओनर के संग मित्रता करने में काम आई. जोस्टल के जो ओनर थे बेसिकली. जो जगलिंग 2008 में IIT में सीखी उसे दिखाकर 2025 में पूरे देश के बच्चों को अपने पीछे कर लिए. चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो चैनल हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो. तो क्या बोला कि जो जगलिंग 2008 में IIT में सीखी उसे दिखाकर 2025 में पूरे देश के बच्चों को अपने पीछे कर लिया. शोक सभा में भाषण दिया अजमेर में. हमारी कॉलोनी में आपने पढ़ा होगा ना, इसमें पिछले 5 सालों में 20 आत्महत्या हो गई हैं जवान लोगों की. 9 साल की बच्ची से लेकर 40 साल के जो जवान लड़के हैं उनकी आत्महत्या हो गई है. मतलब वार्ड तो 5000 लोगों का ही होता है. 5000 के अंदर 5 सालों के अंदर 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है. तो मतलब शोक सभा पर एक भाषण दिया था हमने शोक सभा के अंदर. तो शोक सभा में भाषण दिया अजमेर में, उसका वीडियो देखकर पुष्कर का पुरोहित दीवाना हो गया. 9 साल पहले उर्दू सीखी थी हमने 2016 में. तो अब but since even though I belong to Ajmer, but I was never interested in coming down to Pushkar and learning different languages here and meeting foreigners here. But this time when I came here, I started interacting with Israeli people and I felt like I should learn their language. Pushkar, I have been coming as a child with family, coming in a car with mama, mosi, everyone, going to temple, going to Sarovar, doing dip and then going back. Nothing like being free, being yourself and then interacting with the strangers and then doing something absolutely new. As a Baba, when you first came? Yeah, that is very good question. As a Baba, I first came in Pushkar Mela 2025. So from 16th of November to this 5th of December, I'm here. So this is my 19th day in the row that I'm hitting the field. It helped me. So Baba, you don't understand Hindi at all? I understand. Babagiri ki dukaan. What do you think about this? Is this okay? This word is a proper term. There is nothing wrong with that. What do you think it is wrong about it? Let's discuss. I'm not offended at all. On the contrary, this word is offensive to some people. It may offend. You are not offended. I'm not offended by your question. I'm not saying that you offended. You're trying to understand what it means. I mean, do you think you are a shopkeeper? Yes. Yes. I'm giving something and then I'm expecting something in exchange. So it is a value exchange. Unless value exchange is there, this universe, this world cannot survive, cannot sustain, cannot expand, cannot. You are the first person. I think by the step, the first person who has courage to accept this, that this is a business, and you are the first shopkeeper in this world. I think so. Maybe so. There are so many shopkeepers. All are shopkeepers. Otherwise, it is also. Otherwise, it is Krishnamurti. Yes. But acceptance. This is your first chance. You are accepting this wholeheartedly. And sir, business exposed. Yeah. It's fact. It's fact. This business. If you have really got
to meet the God, you do not need to come back and tell these things to people. You have met the God. अब क्या बचा है जिंदगी में यार? तुझे जब भगवान ही मिल गया है तो तू क्या कर रहा है ये कण भर की पृथ्वी के अंदर ये तुच्छ मनुष्यों के साथ क्या ज्ञान दे रहा है? क्या मोक्ष प्राप्ति कराएगा? तू अपना निकल बस। तो जिसका मिलन ही हो गया है, जिस बूंद ने वापस समुद्र से मिलन ही हो गया है, अब वो क्या इस सोच में है कि उस रेत के टीले पर कुछ बूंदे इंतजार कर रही हैं, उनको भी मिलन कराऊं? क्या उसकी तो सोच ही खत्म हो गई। बट ये अच्छा, कोई बाई चांस मानिए कोई प्यासा खुद ही चलाए तो नहीं, तुम जब मैं इसको बोल रहा हूँ बिजनेस है तो ये कुछ इलीगल या अनैतिक नहीं हो जाता। मैं अनैतिक नहीं है, अनैतिक नहीं है, लेकिन आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ये फ्रेज हाँ फ्रेज इस्तेमाल किया है। लेकिन ये लॉजिक बुद्ध ने भी इस्तेमाल किया। बुद्ध को जब लोग बोलते थे तुम भिखारियों कमा कर खाओ, तो बोलते कि नहीं, मैं ज्ञान की खेती करता हूँ, ज्ञान देता हूँ, उसके बदले में मैं दान लेता हूँ। ठीक है, तो ये उसने एक्सचेंज की बात कही थी, मैंने साफ साफ कह दी है। बाबा, हाँ ये पूरा बाबागिरी है। कुंभ में तो पूरा नंगा नाच आपने देखा ही होगा दादा, पूरा। मैं तो कुंभ में गया था, आप गए थे कुंभ में गए तो गए होंगे आप तो मथुरा के आदमी क्यों नहीं जाएंगे? आप तो कहीं कुंभ देखे होंगे आपने। कुंभ ही है खुद वृंदावन को पूरा। हाँ, तो बस आप तो वहां। और इस्कॉन क्या है? इस्कॉन क्या है आप तो ये देखिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। वंदे मातरम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। 1 2, तो समझ गए ना कैसे कैसे करेंगे? 1 2 1 2 1 2 1 2, या फिर 1 2 1 2। धीरे धीरे करना सब लोग, धीरे धीरे करो, ठीक है भैया? गर्दन वाला करो ही मत, ऐसा वाला करो, कदम ताल वाला करो, ठीक है? और जो लोग बैठे हुए हैं वो ऊपर स्टार ऐसे कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे स्टार्स को 1 2 1 2 कर सकते हैं। करके दिखाओ बच्चे, स्टार्स को ऐसे। जब मैं ऐसे करूं 1 2, आप भी करो। नहीं, 1 2 1 2 मत करो, 1 2। और इसके आगे आप इसको 2 गुण में कर सकते हैं, जैसे 1 2 1, 2 गुण में। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी में तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। तो 2 लाइन प्रैक्टिस करनी है बस। कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। समझ लगा? ठीक है, तो ये एक बीट सेंस इनिशिएशन है, इसको हम रोज 5 मिनट अभ्यास करेंगे, और जो जहां पर जो कर रहा है उसको वही करने देंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे, बस वही वो बीट में आ जाए। अच्छा, ये सबके लिए करना जरूरी है, क्योंकि कोई गाना बीट से बाहर गा रहा है, कोई ढोलक गलत बजा रहा है, कोई पियानो कैसे बजाते हैं लोग यहाँ पे, बजाना जरा, पियानो बजाना, हैप्पी बर्थडे।
या क्या बजा रहा है? ये चाहत बजा रहा है। हाँ जल्दी जल्दी बजा रहा था। 5 कॉन्शियसनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, वेल्थ कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। हेल्थ कॉन्शियसनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस रिपोर्ट, क्वेश्चन, सजेशन, मैसेज, रिपोर्ट कि हेल्थ कॉन्शियसनेस के बारे में तुम क्या जानते हो, अपनी हेल्थ सुधारने के बारे में क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या उससे रिजल्ट निकले और अभी कैसे कर रहे हो। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, विलेज प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, वो यहां से उठा कर ले आओ, ठीक है। और कोई फ्री दे रहा है, हमको तो लोग फ्री देते ही हैं बेसिकली, यहां से सब लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमको दे देते हैं, तो हमारी हेल्थ कॉन्शियसनेस उसमें हो जाती है। वेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए पूरा आ गया, ठीक है, एटॉमिक जॉब्स आ गए। स्पिरिचुअल मीन्स सेल्फ एक्सप्रेशन, तो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए तो ये पूरा काम है। कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी, तो एसएस लैंग्वेज, एसएस संस्कृत, और यहां पर भी कुछ ना कुछ बेचना शुरू करोगे तो कम्युनिकेशन है, और यहां पर तो कम्युनिकेशन आपका है ही। और इसके अलावा 5वें नंबर पर यदि हम ऐड कर सकें तो एसएस चैट्स हैं, जिसके अंदर 24/7 लोग आपस में चैट कर सकते हैं, जो कि यहां पर अलाउड नहीं है, और भी कहीं अलाउड नहीं है, जो कि यहां पर अलाउड है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कुछ ऐसा एजेंडा था, बेसिक चीजें थी। सो इफ आई एम अ ह्यूमन, आई वुड लाइक टू बी इन कम्युनिकेशन विद अदर ह्यूमंस इन रियल और थ्रू इंटरनेट। सो लाइक वो लोग कौन हो सकते हैं? वो लोग तो वही होंगे ना जो मेरी ऐसी सोच रखते हैं और जिस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो उन तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उनकी रिपोर्ट मुझ तक पहुंचाना, तो ये कम्युनिकेशन है। और इस पूरे चक्कर के अंदर वो कुछ इनकम कर लें और फाइनेंशियल एक्सरसाइजेस कर लें, एटॉमिक जॉब्स कर लें और लोगों को करते हुए देख लें। और यदि आपके पास पैसा है तो उन लोगों पर इन्वेस्ट कर दें। पीपल कैन इन्वेस्ट, पीपल कैन मेक कंपनी आउट ऑफ इट, people have made company out of it. This is a whole company. I've made a company out of people who are like minded. So SS language used to be SS English. Now SS English क्या है कि इंग्लिश कहां से शुरू हुई? अब इंग्लिश की बेसिकियत क्या है? तो सरवाइव करने के लिए या तो भारत का पुराना तरीका ठीक था या आधुनिक तरीका ठीक था। तो भारत का पुराना जो तरीका है वो तो गांव में जाकर खेती करने का है, तो वैसे तो लोग सरवाइव कर ही सकते हैं तो करो, बट लोग अपने नए तरीके से सरवाइव करना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सिटीज इन मॉडर्न वे, इंग्लिश इज अ सर्वाइवल टूल। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे फिरंगी हो गया या मैं इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। तो एक सर्वाइवल टूल है, तो वो आना जरूरी है। तो इंग्लिश के साथ साथ में वहां पर आपका स्पेनिश भी जुड़ने लगा और फिर जर्मन भी जुड़ने लगा और फिर कुछ चाइनीज भी लोग करने लगे। तो ये सब वहां पर आ गया, एसएस लैंग्वेज बना दिया उसका, एसएस लैंग्वेज, और झंडे लगा दिए वहां पर। तो इसमें हमारा आपको ये कहना है कि इसमें क्या होगा, टीओएस में रिकरिंग इवेंट्स होते हैं, रिकरिंग इवेंट्स की एक लिस्ट है। सो दोस रिकरिंग इवेंट्स आर टू बी फॉलोड बाय एडमिन्स। एवरी ग्रुप हैज 20, ideally 20 admins must be there, but 10 admins are already there. So इसमें कुछ रेगुलर इवेंट्स हैं, इसमें कुछ रेगुलर इवेंट्स हैं, इसमें कुछ रेगुलर इवेंट्स हैं और इसमें कुछ रेगुलर इवेंट्स हैं। तो ऐसे लैंग्वेज का मैं रेगुलर इवेंट आपको बताता हूं। सो हाउ मेनी पीपल आर देयर? दे मस्ट बी सम 100 people, or let's say even 20 people are there. So all 20 people are supposed to be active there. What I'm trying to say, minimum 20 people are supposed to be active there, means active daily through text or voice note. Text, just one word. If you are learning Spanish, just one word of Spanish. And if you are learning Spanish, I believe you are already on Duolingo. Yes. Remember, we have to finish our Duolingo. So Duolingo. Share Duolingo achievements. Your profile link. Get associated with each other on Duolingo. And begin your communication there. In Spanish, German, English, make friends there. Sanskrit is not there. But Sanskrit is here. Sanskrit also same thing.
मिनिमम 20 पीपल यहां पर आप बना दीजिए डेली एक्टिव। क्या करना है, एक टेक्स्ट लिखना है या फिर वॉइस नोट देना है, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ एसएस चैट्स इज ऑलरेडी देयर। लेट्स कम बैक टू एसएस मार्केटिंग। सो लेट्स टेक अ सैंपल ऑफ few people in order to understand the concept of SS marketing ABCD. In order to understand the concept of SS marketing ABCD, let's take an example of 3 sellers. Let's say first seller is you, Mr. Pokle. So Pokle is selling digital marketing. गार्गी एस्ट्रोलॉजर जी हैं यहां पर, ये एस्ट्रोलॉजी इनका हो ही गया, एस्ट्रोलॉजी। देन राहुल जैन वी हैव, एंड देन वी हैव राजेश धारकर. So ABCD means putting all the sellers in alphabetic order. Only those sellers which have number, which have provided their number. So let's say Pokle has provided, Pokle has not provided number. So no number. So Gargi ji has provided number, और ये provided number and did not provide number. तो ऐसा क्या है कि ये जो Pokle है ना, this Pokle will come here. So G alphabetic order, G and then R. You understand? So this is the SS marketing ABCD. So this whole text, this whole piece of text will be sent, should be sent there every day. And every seller, like who already has his name but doesn't have the number, तो वो क्या अपना नंबर डाल सकता है? वो किस नंबर डालेगा? वो ABCD को देखेगा. He will copy the whole text and he will put his number if number is not there, and if his name is not there, then what he'll do is he'll put his name there, he'll put his number there, and then he'll resend back the whole text he'll send back. You understand? हाँ दादा, हाँ सो जाएंगे. तो क्या अभी सोने वाले हैं दादा? तो आप समझ गए ना. तो इस प्रकार से एसएस मार्केटिंग का टेक्स्ट बन जाएगा और वो सेंड कर देगा. और एसएस मार्केटिंग, जो लोग एसएस मार्केटिंग में कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, उनका भी कुछ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा. मतलब स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क, ऐसा कुछ बना सकते हैं. स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क है ना, स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क. Standard atomic recurring tasks. So let's take an example of Mr. Pokle. Mr. Pokle, first thing, Mr. Pokle did not have number. Mr. Pokle did not even have the name. Mr. Pokle wasn't even aware of SS marketing ABCD. Were you aware of SS marketing ABCD? So now you know SS marketing ABCD. So through one of the sellers or through somehow you will find that whole text, and then you will see where is the P. You will see where is the P, and then you will put Prajwal Pokle, digital marketing, this number, this link, whatever. So like Rahul Jain has put his number and his details. You can put your number in detail and in the alphabetical order, and only in the alphabetical order of the people who have put their numbers. जब उनके नंबर वालों के जो नाम खत्म हो जाएंगे ना, तब बीच में एक डॉटेड लाइन आएगी और उसके बाद फिर से एबीसीडी शुरू होगा सिर्फ नाम वालों का, क्योंकि उन लोगों ने इतना माइंडफुली चेक नहीं किया उस एबीसीडी को कि यार मेरा नाम भी है इसमें लेकिन मेरा नंबर नहीं है, या फिर एबीसीडी तो है लेकिन मेरा नाम तो के से आता है. वो के से तो मेरा नाम है ही नहीं. आप समझ गए? तो के से तो मेरा नाम है ही नहीं, तो वो बोलेगा क्यों नहीं है, तो वो अपना डाल देगा. ठीक है, तो इस प्रकार से उसका बन जाएगा. अब स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क कौन से हो जाएंगे? मतलब रोज एक्टिविटी करनी है आपको. व्हाट्सएप पर रोज करनी है, फेसबुक पर रोज करनी है, वाईटी पर रोज करनी है, आईजी पर रोज करनी है, टीजे पर रोज करनी है. एक रिलीजन है बेसिकली. दिस इज अ रिलीजन. ये आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है ना. सेल्फ एक्सप्रेशन धर्म है, स्वभाव धर्म है, तो आपकी अभिव्यक्ति धर्म है. क्या समझे? अभिव्यक्ति. अभिव्यक्ति धर्म है. तो अभिव्यक्ति क्या है? ये इंसान की अभिव्यक्ति है. कोई इंसान क्या बेचना चाहता है,
ये ड्राइविंग स्कूल बेचना चाहता है, और कोई रिपोर्ट ऐसे देना चाहता है, और कोई इस कारण से सुपीरियर सोसाइटी में जुड़ा रहना चाहता है, कोई ये लैंग्वेज सीखना चाहता है, फिर संस्कृत पर भी आते हैं। तो ये है, तो मार्केटिंग